बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है echo modalities. The modalities of echo usually used clinically are टू टाइप्स की होती हैं, इमेज इको एंड डॉपलर इको। इमेज इको में आगे दो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, टू डायमेंशनल इको जिसको हम 2D इको भी कहते हैं एंड मोशन मोड इको जिसको हम एम मोड इको भी कहते हैं। डॉपलर में हमारे पास कंटिन्यूस वेव डॉपलर होता है, पल्स वेव डॉपलर होता है, CW एंड VW डॉपलर। Different echo modalities are not mutually exclusive but complement each other and are often used together. All of them follow the same principle of ultrasound but differ with respect to the manner in which reflected sound waves are received and displayed. Two-dimensional echo या 2D echo ultrasound reflected from a tissue interface distort the piezoelectric crystal and generates an electrical signal. The signal produces a dot and spot on the display screen. The location of the dot indicates the distance of the structure from the transducer. The brightness of the dot indicates the strength of the returning signal. अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है टू डायमेंशनल इको जिसमें आपके पास 2D इको आता है, 2D व्यू जिसको हम कहते हैं, या उसमें आपके पास ए में है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू और बी में है पैरास एपिकल 4 चैम्बर व्यू। To create a 2D image, the ultrasound beam has to sweep across the area of interest. The ultrasound is transmitted along several lines, जिसमें 90 to 120 scan lines over a wide 45 to 90 degree arc and many 20 to 30 times per second। आपके पास कितनी अल्ट्रासाउंड जो बीम होती है उसमें कितनी लाइंस आती हैं, स्कैन लाइंस 90 टू 120, और जो एरिया बनता है वो है 45 टू 90 डिग्री एंड एक सेकंड में कितनी आ जाती है, मैनी टाइम्स 20 टू 30 टाइम्स पर सेकंड। The superimposition of simultaneous reflected dots build up a real-time image on the display screen। क्योंकि ये 2D image है तो इसमें superimposition होती है। Production of images in acute session creates an anatomical cross-section of the structures. Any image frame can be frozen, studied on the screen, or print out on thermal paper or a X-ray film. 2D echo is useful to evaluate the anatomy of the heart and the relationship between different structures. इंट्राकार्डिक मैसेज या एक्स्ट्राकार्डिक पेरिकार्डियल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। इंट्राकार्डिक जो चैम्बर्स के अंदर होते हैं, जो वॉल्स के अंदर वाले एरिया में होंगे उनको हम इंट्राकार्डिक मैसेज कहते हैं। जो हार्ट के मसल्स के बाहर होंगे उनको हम एक्स्ट्राकार्डिक, जिसमें पेरिकार्डियम में आ सकती हैं एब्नॉर्मैलिटीज, उनको हम एक्स्ट्राकार्डिक पेरिकार्डियल एब्नॉर्मैलिटीज कहते हैं। तो इनको नोट करने के लिए हम इनको एक्सेस करने के लिए हम 2D को यूज करते हैं। मोशन ऑफ द वॉल of the ventricle and the cusp of valves are visualized. Thickness of ventricular wall and dimensions of chamber can be measured, and stroke volume, ejection fraction, cardiac output can be calculated on 2D echo. 2D image is also used to place the cursor line for M mode। इसलिए हम कहते हैं कि M mode की जो बेस होती है वो 2D echo पे होती है। 2D के बगैर हम M mode नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो M mode की cursor line होती है वो 2D पे डिस्प्ले करनी है। 2D image is also used to place the cursor line for M mode echo and to position the sample volume for Doppler echo। हमारे पास आता है मोशन मोड जिसको हम M mode भी कहते हैं, M mode echo। In M mode tracing, ultrasound is transmitted and received along only one scan line। अब आपने याद रखना है 2D में हमारे पास many scan lines थी, इसमें हमारे पास single scan line होती। This line is obtained by applying the cursor to the 2D image and align it perpendicular to the structure being studied। The transducer is finely angulated until the cursor line is exactly perpendicular। जितना ज़्यादा perpendicular होगा, exact अगर perpendicular होगा तो हमारे पास image quality best होगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एंगल बने वो perpendicular एंगल हो। M mode is displayed as a continuous tracing with two axes. The vertical axis represents distance between the moving structure and the transducer. The horizontal axis represents
टाइम। तो हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक वर्टिकल है जिसमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है। डिस्टेंस कौन सा है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रांसड्यूसर है उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेप्थ कितनी है, इस चीज़ को वर्टिकल एक्सेस ने रिप्रेजेंट करना है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये एक्सेस होगा, उसने हमारे पास क्या करना है, टाइम को रिप्रेजेंट करना है कि कितने टाइम में जो अल्ट्रासाउंड बीम थी वो ट्रांसमिट हुई और कितने टाइम में वापस आई। तो वो जो टाइम टोटल लगा था वो आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। Since only one scan line is imaged, M-mode echo provides greater sensitivity than 2D echo for studying the motion of moving cardiac structures. तो हम motion of moving जो cardiac structures होते हैं उनके लिए M-mode ज़्यादा best है as compared to 2D echo. Motion and thickness of ventricular wall, changing size of cardiac chambers, and opening and closure of valves is better display on M-mode. अब अगर यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये दो इमेजेस हैं, एक माइट्रल वेल्व के लेवल पे और एक एओर्टिक वेल्व के लेवल पे, जो कि हम मोशन मोड में देख रहे हैं, एम मोड इको जिसको हम कहते हैं। सिमल्टेनियस ईसीजी रिकॉर्डिंग फैसिलिटेट्स एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ कार्डिक इवेंट्स। कि अगर हम ईसीजी को साथ में अलाइन कर लें तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि कौन सा कार्डिक इवेंट किस टाइम पे हो रहा है, किस टाइम पे कार्डिक जो मसल्स हैं उनकी मोशन कम होगी और हम ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी में इमेज जो है वो ले सकते हैं। सिमिलरली द फ्लो पैटर्न ऑन द कलर फ्लो मैपिंग कैन बी टाइम्ड इन रिलेशन टू द कार्डिक साइकिल। आगे हमारे पास आता है कार्डिनस वेव डॉपलर। कार्डिनस वेव जो डॉपलर होता है ट्रांसमिट्स एंड रिसीव अल्ट्रासाउंड कंटिन्यूअसली। इट कैन मेजर हाई वेलोसिटीज विदाउट एनी अपर लिमिट एंड इज नॉट हिंडर्ड बाय द फिनोमिना ऑफ लेजिंग। However, CW Doppler cannot precisely localize the returning signal, which may originate anywhere along the length and width of the ultrasound beam. कि वो सिग्नल्स को वो प्रिसाइजली लोकलाइज नहीं कर सकता कि वो किस जगह से कितनी लेंथ से हमारे पास वापस आया है। दिस डॉपलर मोडालिटी इज यूज्ड फॉर रैपिड स्कैनिंग ऑफ द हार्ट। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडली अगर हार्ट मूव कर रहा है, उसके वॉल्स मूव कर रही हैं, तो वहाँ ये मोडालिटी जो है बेस्ट होगी। इन सर्च ऑफ हाई वेलोसिटी सिग्नल्स एंड abnormal flow patterns अगर हों तो वहाँ पे ये बेस्ट होगा। Since the Doppler velocity shift is in the audible range, the audio signal is used to angulate and rotate the transducer in order to obtain the best visual display. ये हमारे पास कंटिन्यूस वेव डॉपलर की है इमेज है, जिसमें आपके पास एपिकल 5 चैम्बर व्यू, उसके बाद राइट पैरास्टर्नल और सुप्रास्टर्नल नोच, तीन मैक्सिमम वेलोसिटीज हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड के लिहाज से। CW Doppler display forms the basis of our placement of sample volume to obtain PW Doppler spectral tracings। अब हमें पता है कि जो M मोड की बेसिस थी वो थी हमारे पास 2D के, हमारे पास 2D इमेज है, उसके ऊपर हमने एक सिंगल स्कैन लाइन कर्सर लाइन को ड्रॉ किया, वहाँ से हम M मोड का इमेज बना सकते हैं। M मोड जो है वो नेक्स्ट हमारे पास होता है डॉपलर के लिए। हम M मोड और 2D के बगैर डॉपलर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो CW डिस्प्ले फॉर्म्स हैं वो बेसिस है किसके लिए, सैंपल वॉल्यूम PW के लिए। CW Doppler is used for grading the severity of valvular stenosis and assessing that degree of valvular regurgitation, जिसको हम MR या VR, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वॉल की regurgitation होती है। An intracardiac left to right shunt such as ventricular septal defect can be quantified by using CW Doppler. Signal of the tricuspid valve pulmonary artery pressure can be calculated. Next हमारे पास है pulse wave Doppler. Pulse wave Doppler transmits ultrasound in pulses and wait to receive the returning ultrasound after each pulse. लेकिन CW में ऐसा नहीं होता, उसमें हम कंटिन्यूसली जो है पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पल्स को ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, फिर हम रिसीव करेंगे रिटर्निंग अल्ट्रासाउंड जो बीम होगी। बिकॉज ऑफ द टाइम डिले इन रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड सिग्नल विच लिमिट्स द सैम्पलिंग रेट, इट कैन नॉट डिटेक्ट हाई वेलोसिटीज। CW में हम हाई वेलोसिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेनोसिस जहाँ पे होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है उसकी वेलोसिटीज होती है वो ज़्यादा होती है, उन एरियाज को हम ज़्यादा एक्यूरेटली CW से असेस कर सकते हैं। PW पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई वेलोसिटीज को इतना एक्यूरेटली
असेस नहीं कर सकता। At high velocities over 2 meter per second, there occurs a reversal of flow, known as the phenomena of lasing. However, PW Doppler provides a better spectral tracing than CW Doppler. तो अगर हमने स्पेक्ट्रल ट्रेसिंग देखनी है तो वो हमें PW पे ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी एज कम्पेयर टू CW. CW पे हमें स्पेक्ट्रल ट्रेसिंग बेटर क्वालिटी में नहीं मिलती, विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस, क्योंकि हमने कैलकुलेशंस करनी है तो हम स्पेक्ट्रल ट्रेसिस जो है वो PW पे करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है वेलोसिटी, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। किस लेवल पे? स्टेनोटिक एओर्टिक वेल पे अगर हमने किया है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हम बेस्ट इसमें पल्स वेव डॉपलर में देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, हाई वेलोसिटी होगी, जैसे कि पीछे वाले इमेज में था जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको असेस करने के लिए हमें कंटिन्यूस वेव डॉपलर यूज़ करना पड़ेगा जो हाई वेलोसिटीज को असेस कर सकता है। PW Doppler modality is used to localize velocity signals and abnormal flow pattern picked up by the CW Doppler and color flow mapping respectively. Mitral valve inflow signal is used for the assessment of left ventricular diastolic dysfunction. कि अगर हमने लेफ्ट वेंट्रिकल का diastolic dysfunction देखना है तो हम mitral valve का inflow signal देखेंगे. The aortic valve outflow signal is used for the calculation of stroke volume and cardiac output. At the end of this lecture, Allah Hafiz.